And if we are live. Good evening, good evening. Are we not live yet? Okay, cool. All right. What do you think we're going to talk about today? Any guesses? Hello, good evening, good evening. Hi, Bikram, Achal, Devyani, Vishesh, Govind, Gautam, Anushka, Pawan, Gauri, Premansh, Devyani, Garima, Harshika, Kriti, Sanjana, Astha, Dhruvi, Anshika. Hello, Vedansh, Pratyaksh, Gaurav, Samarth, Nidhi, Nishant, Sarvesh, Rangoli, Dhat. Hi, Madhurima, Abhiram, Achal, Alpana. Close to Vibgyor and Spectrum. Okay, Okay, I forgot to do something. Just give me a moment. Can you all give me a moment to edit something in the passage so that we can solve the question nicely? Or maybe I should pause the streaming for a bit. Yeah, to make that change. Just give me one moment, please. नहीं है भरोसा, बिल्कुल भरोसा नहीं है. Chalo, okay. So we'll start with episode 26 of Eclectic Reading, and we are going to talk about colors today. Okay. Before we begin, you can buy the Unacademy test series now for $19.99 only. So go ahead and buy 25 full length mocks and 10 monthly sectional tests, and it's a good chance, plus it's very reasonable. So you can buy the Unacademy mocks. If you're already a subscriber, then you can access the mocks in your test section from your app. Enroll to those tests and they will appear in your planner. The CAT Assure program is a very interesting program in which if you buy an iconic program for 1 year and you are one of the 50 learners, then you are getting 100% refund the moment you crack an IIM. Just in case you fail to crack it this year, we are giving you 1 year extension for free, and you do not have to pay us. So you will be with us for 2 years and prepare by paying for 1 year. That's one option. Or you are going to prepare with us, get into an IIM, get 100% refund of your entire fees. So it's a beautiful opportunity. You can subscribe to Unacademy using code Karishma Live. That will enable you to get all the discounts that are going on, and of course it will enable you to enroll to the Assure program. The night batch for CAT 2023 has begun on the 15th of June, which is great for working professionals and college students who are busy during the daytime. तो सारे निशाचर ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं. बेल द कैट बैच भी स्टार्ट हुआ है जून 15 को. इसके यूएसपीज भी आप चेकआउट कर सकते हैं. लेट्स बिगिन विद द आर्टिकल. We might think that the sky is blue and the trees are green, but the truth is rather stranger. In February 2015, a Scottish woman uploaded a photograph of her dress to the internet. Within 48 hours, the blurry snapshot had gone viral, provoking spirited debate around the world. The disagreement centered on the dress's color. Some people were convinced it was blue and black, while others were adamant it was white and gold. Those of you who have done the grammar course with me can also point out the grammatical error that exists here. In the meanwhile, we'll discuss the passage. तो ये कहता है कि भाई हमको लगता है कि स्काई ब्लू है, ट्रीज ग्रीन है, लेकिन ट्रूथ जो है इस सबसे अलग है. 2015 में एक स्कॉटिश बंदी ने एक पिक्चर डाला, अपना फोटोग्राफ डाला एक ड्रेस का, और उसके बाद वो ड्रेस का जो ब्लरी फोटो था वो वायरल हो गया. पूरी दुनिया में डिबेट चलने लगा क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे कि ड्रेस का कलर ब्लू और ब्लैक है, और बाकी के लोगों को उसका कलर वाइट और गोल्ड दिखाई दे रहा था. करेक्ट.
ड्रेसेस में अपॉस्ट्रोफी नहीं आएगा बिकॉज इट इज़ अ नॉन लिविंग टैंजिबल ऑब्जेक्ट, तो कलर ऑफ द ड्रेस आएगा. अपॉस्ट्रोफी इज नॉट यूज विथ नॉन लिविंग टैंजिबल ऑब्जेक्ट्स. तो आइडियली इट शुड बी ऑन द कलर ऑफ द ड्रेस. बट एनीवे, everyone it seemed was incredulous. Credulous is when you believe too easily and incredulous is when you are not believing very easily. तो हर किसी को लग रहा था कि हम ऐसे कैसे यकीन कर लें. जिन लोगों को ब्लू एंड ब्लैक दिख रही थी वो भी लड़ रहे थे वाइट एंड गोल्ड वालों से, जिनको वाइट एंड गोल्ड दिख रही थी वो ब्लू एंड ब्लैक वालों से लड़ रहे थे. People could not understand how, faced with exactly the same photograph of exactly the same dress, they could reach such differently and firmly held conclusions about its appearance. तो लोगों को समझ नहीं आया कि जब हमारे सामने सेम ड्रेस है, हम सब लोग एक ही ड्रेस देख रहे हैं, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे कंक्लूजन्स बिल्कुल डिफरेंट हैं और हम लोग आपस में अग्री ही नहीं कर रहे उसके अपीयरेंस को लेकर. द कन्फ्यूजन वॉज ग्राउंडेड इन अ फंडामेंटल मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट कलर. तो हमारी जो कन्फ्यूजन थी वो हमारी कलर को लेकर एक बेसिक फंडामेंटल रूडिमेंटरी मिसअंडरस्टैंडिंग थी. क्या? One, that despite mounting evidence to the contrary shows little sign of disappearing. So this is parenthetical expression, so you can read the sentence without it. Fundamental misunderstanding about color, one that shows little sign of disappearing. तो हमारी जो misunderstanding थी वो disappear होने का नाम ही नहीं ले रही थी तब भी, जबकि हमारे पास जो evidence मौजूद था वो बिल्कुल contrary था. For a long time people believed that colors were objective. So if I ask you, if colors are objective and subjective, most of the people will agree that they are largely objective. If something is black, it's black for most of us or all of us. Yes, of course, there can be shades. Somebody will say this is jet black, somebody will say this is greyish black, somebody will say this is bluish black. But largely most of us will agree that it is a shade of black. तो हमको लगता है कि colors objective है, जिस पे सब लोग agree करेंगे, वो fact है. तो for a long time people believed that colors were objective. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स और ऑफ द लाइट दैट बाउंस्ड ऑफ देम. तो आपने पढ़ा होगा कि जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है सरफेस से वैसा ही कलर हमको दिखता है और हम सबको सिमिलर कलर्स दिखते हैं. तो हमको ये समझ आया है अब तक कि कलर्स ऑब्जेक्टिव होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, और ये उस लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं जो कि रिफ्लेक्ट हो रही है, बाउंस ऑफ हो रही है उनके सरफेस से. Even today, science readers regale their students with stories about Isaac Newton and his prism experiment, telling them how different wavelengths of light produce the rainbow views around us. Use मतलब colors. तो आज भी साइंस के टीचर्स अपने अपने स्टूडेंट्स को दुखी करते हैं स्टोरी सुना सुना के आइजैक न्यूटन की, प्रिज्म में एक साइड से सिंपल सनलाइट जाती है, दूसरी साइड से 7 रंग निकलते हैं, विबग्योर पढ़ाया जाता है. वी आर ऑल टॉट दिस थ्योरी अबाउट colors and one light splitting into 7 shades and we being able to see the shade that is bounced off and not being able to see the color that is absorbed by the body. ये सब हमने physics में पढ़ा है. But this theory is not really true. So welcome to CAT preparation. What you've done at school is now being discarded a little. Different wavelengths of lights do exist independently, but they only become colors inside our bodies. उस दिन हम यही बात happiness के लिए भी कर रहे थे ना, कि बाहर की चीज़ों में हैप्पीनेस नहीं है, बाहर की चीज़ों को हम यूज़ करते हैं तो हमारे अंदर हैप्पीनेस का जन्म होता है. ये भी कुछ वैसा ही फंडा है कि बाहर वेवलेंथ एग्जिस्ट करती है लाइट की इंडिपेंडेंटली, लेकिन एक्चुअली वो कलर कहाँ बनती है, हमारे सिस्टम में जाके कलर बनती है. अगर हम नहीं हैं तो उसका रियल लाइफ में जो हमें जो रियल लगता है, बाहर की दुनिया में उसकी कोई सतह नहीं है, उसकी कोई सतह नहीं है, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. तो बाहर वेवलेंथ्स एग्जिस्ट करती हैं लेकिन वो कलर बनती है हमारे अंदर जाकर. कलर इज अल्टीमेटली अ न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस. तो ये नर्वस सिस्टम का काम है, वेयर फोटॉन्स आर डिटेक्टेड बाय लाइट सेंसिटिव सेल्स इन आवर आइज, transformed into electrical signals and sent to our brain, where in a series of complex calculations our visual cortex converts them into color. तो आज आप समझ लीजिए कि हम कलर्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. ये एक न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें फोटॉन्स जो कि लाइट से निकलने वाले पार्टिकल्स रहते हैं वो डिटेक्ट होते हैं. हमारी आँखों में लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं, वो उसे डिटेक्ट करती हैं, उसको कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिक सिग्नल में. इलेक्ट्रिक सिग्नल आई से ट्रैवल करते हैं ब्रेन में चलते हैं सीरीज ऑफ कैलकुलेशंस, और कैलकुलेशंस में हमारा विजुअल कॉर्टेक्स जो पार्ट है वो बताता है कि ये कौन सा कलर है. तो कलर आइडेंटिफिकेशन एक न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस है. उसका जो बाहर की जो फिजिक्स है वो एक अलग मामलात है. जो हमारे जहन में हो रहा है, जो हमारे अंदर ब्रेन में हो रहा है, वो एक अलग न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस है. ठीक.
7 बार रीडिंग लेनी होती है? अच्छा ठीक है, शिवांशु काफ़ी पीड़ित है फिजिक्स की क्लासेस से. Most experts now agree that color, as commonly understood, doesn't inhabit the physical world at all, but exists in our eyes or minds. तो बहुत सारे experts अब agree करते हैं कि color जैसा कि हम usually समझते हैं वैसा नहीं है. बाहर की दुनिया में color exist नहीं करता. Color exist करता है हमारी आँखों में और हमारे मन में. तो ये हमारी मानसिक सृष्टि है. They argue that if a tree fell in a forest and no one was there to see it, its leaves would be colorless. तो अगर ट्री गिरता है फॉरेस्ट में और उसको कोई नहीं देखता है तो उसकी लीव्स ग्रीन या येलो नहीं है, उसकी लीव्स कलरलेस है. इनफैक्ट हर चीज़ के साथ ऐसा ही है. एवरीथिंग एल्स वुड बी लाइक दैट. टू पुट इट इन अनदर वे, देयर इज़ नो सच थिंग एज कलर, देयर आर ओनली द पीपल हु परसीव इट. हम फिलॉसफी की बात कर रहे थे, मेटाफिजिक्स की, कि अलग अलग डायमेंशंस हैं, क्या रियल है क्या रियल नहीं है. मैंने आपको देकार्ते होमवर्क के लिए दिया था जिसने काफ़ी कुछ इस बारे में चर्चा करी कि व्हाट इज़ रियल एंड व्हाट इज़ नॉट रियल. तो ये भी सिमिलर बात कह रहा है. ये कहता है कि कलर जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है. जो है आपके जहन में है, आपके मन में है, आपके ब्रेन में है. तो ऐसे लोग हैं हम सब जो कि कलर्स को परसीव करते हैं, लेकिन दुनिया में कलर जैसी कोई चीज़ नहीं है. तो जो हमने देखा नहीं है वो कलरलेस है, जो आपने देख लिया उसका कलर है. दिस इज़ वाई नो टू पीपल विल एवर एग्जैक्टली सी द सेम कलर. अब सबका न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस अलग है, सबका विजुअल कॉर्टेक्स अलग है, सबका ब्रेन अलग है, सबके इलेक्ट्रिक सिग्नल्स अलग हैं. इसीलिए दो लोग कभी भी एक कलर को एक कलर जैसा नहीं देखते. सो लाइक आई सेड, people can argue, somebody can say it's bluish black, somebody will say it's jet black, somebody will say it's grey black, somebody will say it's I don't know what kind of black. So therefore no two people look at color in the same way. क्या मतलब पिंक कलर एग्जिस्ट नहीं करता? सबसे बुरी बात है कि लैवेंडर एग्जिस्ट नहीं करता है. एवरी पर्सनस विजुअल सिस्टम इज़ यूनिक एंड सो देयरफॉर आर देयर परसेप्शन. सबका विजुअल सिस्टम अलग है और विजुअल सिस्टम अलग होने की वजह से सबके परसेप्शंस भी अलग हैं. About 8% of men are colorblind and see fewer colors than everyone else. 8% लोग तो हैं ही कलर ब्लाइंड, तो उनको वैसे ही कम कलर्स दिखते हैं. बहुत सारे कलर्स उनको समझ ही नहीं आते क्योंकि वो कलर ब्लाइंड है. A small number of lucky women might, thanks to a genetic duplication on the X chromosome, be able to distinguish many more than the rest of us. I am again reminded of प्यार का पंचनामा. So baby pink and rose pink and lavender pink and magenta and rani and you know all those kind of pinks are very different. तो विमेन में, कुछ लकी विमेन में एक जेनेटिक ड्यूप्लिकेशन रहता है एक्स क्रोमोजोम पे. तो वी आर एक्स क्रोमोजोम, तो हमारे एक्स क्रोमोजोम पे एक जेनेटिक ड्यूप्लिकेशन रहता है जिसकी वजह से हम बाकी लोगों से ज़्यादा कलर्स के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. तो कुछ विमेन के लिए ईजी होता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वेरियस शेड्स ऑफ द कलर. बाकी लोगों के लिए वो हो सकता है कि सब कुछ एक जैसा ही दिखे. माई फ्रेंड एंड आई वर कुकिंग द अदर डे एंड ही सेड, ज़ुकीनी को देख के था दिस इज़ ऑरेंज. मैंने कहा दिस इज़ नॉट ऑरेंज, दिस इज़ येलो. कहता दिस इज़ ऑरेंज. सो आई पिक्ड अप द कैरेट, गर्मियों वाली. मैंने कहा दिस इज़ ऑरेंज. सो देन ही हैड टू कीप हिज माउथ शट. ही सेड okay, the zucchini is orange as long as you don't show me the carrot. The moment you show me the carrot, I'll admit that this is yellow, but this is orange. मैंने कहा no, this is very bright yellow. So we had that fun conversation. So this is like it. So some of us are very good at distinguishing between colors. Animals inhabit very different chromatic worlds too. अब animals की अपनी अलग chromatic दुनिया है. Chromatic is basically, chroma means color, right? और chromatic world उन लोगों की बिल्कुल अलग है. ठीक. आज तक समझ नहीं आता कि इतना डिटेल में चेक करना क्यों है. इसीलिए चेक करना है क्योंकि फिर पता कैसे चलेगा कि किसके साथ क्या क्लब करना है, किसके साथ क्या पहनना है. ठीक है. एनीवे, मोस्ट मैमल्स आर रेड ग्रीन कलर ब्लाइंड. बुल्स माइट बी फेमस फॉर देयर हेट्रेड ऑफ रेड केप्स, बट द कलर इटसेल्फ इज इनविजिबल टू देम. दे आर एक्चुअली एनरिच्ड बाय द फैब्रिक्स मूवमेंट्स. आई थिंक इतना सबको पता होगा. अब तो ये बहुत पॉपुलर बात है कि बुल रेड कलर से नहीं विचलित होता, वो कलर ब्लाइंड होता है, उसको दिखता भी नहीं है कि रेड है. आप सड़क पे चल रहे हैं तो बुल आपके पीछे नहीं आएगा रेड कलर देख के, लेकिन आप उसके सामने रेड कलर का केप बार बार लहराएंगे फ्लैग के जैसे, तो उससे वो एजिटेट होता है और भागता हुआ आता है, जो आपने स्पेन में रेस भी देखी होगी. तो एनिमल्स की अपनी अलग दुनिया है. बहुत सारे मैमल्स को रेड ग्रीन कलर नहीं दिखाई देता, वो रेड ग्रीन कलर के प्रति कलर ब्लाइंड होते हैं. बुल्स कलर ब्लाइंड होते हैं, लेकिन वो फैब्रिक के मूवमेंट से उनको गुस्सा आ जाता है. ठीक. साकिब काफ़ी आहत है. साकिब, इससे तो मतलब कलर ब्लाइंड होना ही अच्छा है, नहीं? और देन देर आर रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स दैट परसीव मोर कलर्स देन अस. और फिर हमसे ज़्यादा कलर देखने वाले लोग हैं, एनिमल्स हैं. जैसे बीज को अल्ट्रा वायलेट लाइट भी दिख जाती है, और वो फ्लावर्स के
बहुत इलेबोरेट पैटर्न्स देख पाते हैं जो हमें नहीं दिखाई देते। तो हमको तो उतना ही फ्लावर दिखता है जितना कि आईफोन का कैमरा अलाउ करता है, वही हमारी लिमिट है, ठीक है कि नहीं। लेकिन बीज को अल्ट्रावायलेट लाइट दिखती है जो कि फ्लावर्स के इलेबोरेट पैटर्न्स को नोटिस कर लेती है। स्नेक्स को इंफ्रारेड रेडिएशन दिखती है और वो अपनी प्रे को, अपने खाने को दूर से उनकी वार्मथ से पहचान पाते हैं, तो उनको इंफ्रारेड रेडिएशंस दिखती हैं। कलर, Umberto Eco once said, is not an easy matter. It is elusive and elusive. Elusive is something which is trying to escape, okay, evasive, and elusive is illusion. तो रंग का मामला जो है वो एल्यूजिव भी है, पकड़ में नहीं आता, और इल्यूजिव भी है कि इल्यूजन रहता है। Pretty much everything we take to be self-evident about it really isn't self-evident at all. तो हमको लगता है कि कितनी नॉर्मल बात है ना कि रिमोट वाइट है तो और ये सेल्फ एविडेंट है, सबको दिख रहा है कि वाइट है, लेकिन एक्चुअली ये सेल्फ एविडेंट बात नहीं है। साइंटिस्ट्स हैव शोन दैट द स्काई इज़ नॉट ब्लू, द सन इज़ नॉट येलो, स्नो इज़ नॉट वाइट, ब्लैक इज़ नॉट डार्क एंड डार्कनेस इज़ नॉट ब्लैक। तो अभी ये साइंटिफिकली प्रूवन एक्सपेरिमेंट्स हैं हमारे पास जो प्रूव करते हैं कि आसमान नीला नहीं है, बस वो नीले नीले अंबर किशोरदा ने गा दिया है। सूरज पीला नहीं है, स्नो वाइट नहीं है, ब्लैक डार्क नहीं है और अंधेरा ब्लैक नहीं है। वन कॉज ऑफ द प्रॉब्लम और परहैप्स इट्स सिस्टम इज़ लैंग्वेज। अब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सारे खेल में भाषा का। इन इंग्लिश वी डिवाइड कलर स्पेस इनटू 11 बेसिक टर्म्स। हमारे पास 11 या 12 क्रेयॉन्स हुआ करते थे, तो ये उन्हीं की बात करता है कि हमारे पास बेसिक 11 टर्म्स हैं। ब्लैक, वाइट, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, ब्राउन, ग्रे, ऑरेंज एंड पिंक। आई थिंक एक मरून और हुआ करता था, तो 12 क्रेयॉन्स होते थे। तो हमारे ये 11 बेसिक टर्म्स में हम इंग्लिश में कलर्स को देखते हैं। बाकी सब इसके भाई हैं, लैवेंडर, बेबी पिंक, रोज पिंक, ऑरेंज ब्राउन, मस्टर्ड येलो, ब्लैकिश ग्रे, बजरंगबली ऑरेंज, फ्लोरोसेंट पिंक एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अदर लैंग्वेजेस डू थिंग्स डिफरेंटली। तो अभी इंग्लिश वालों को तो ये 11-12 पता चल गए, ठीक है, लेकिन जिनको इंग्लिश नहीं आती है उनका क्या सेंस है। तो अदर लैंग्वेजेस चीज़ें डिफरेंट करती हैं। मैनी डोंट हैव वर्ड्स फॉर पिंक, ब्राउन एंड येलो। बहुत सारी लैंग्वेजेस में पिंक कलर के लिए वर्ड ही नहीं, मतलब मुझे नहीं पता वहाँ की लड़कियाँ कैसे मैनेज कर रही हैं, बट पिंक के लिए कलर नहीं है। पता नहीं वो लोग को अपना पूप का कलर क्या दिखता है, क्योंकि ना ब्राउन पता है ना येलो पता है, आई डोंट नो। एंड सम यूज़ वन वर्ड फॉर बोथ ग्रीन एंड ब्लू, और कुछ लैंग्वेजेस में ग्रीन और ब्लू का एक ही वर्ड है। देर आर टिफ पीपल इन वेस्ट अफ्रीका, दे यूज़ ओनली 3 बेसिक कलर टर्म्स। उनको बस 3 कलर आते हैं, ब्लैक, वाइट, रेड, बात ही ख़त्म। मतलब उनको हमारे ट्रैफिक सिग्नल भी समझ में नहीं आएंगे, और मुझे नहीं पता कि फिर वहाँ की लड़कियाँ हेयर कलर कैसे कराती हैं, बट उनके पास 3 ही टर्म्स हैं, ब्लैक, वाइट और रेड। एंड एट लीस्ट वन इंडिजिनस कम्युनिटी हैज़ नो स्पेसिफिक वर्ड्स फॉर एनी कलर्स, ओनली लाइट एंड डार्क। और बहुत सारी ऐसी इंडिजिनस कम्युनिटीज़ भी हैं जिनके पास कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं है किसी भी कलर के, उनको सिर्फ लाइट कलर और डार्क कलर पता है, ठीक है। तो अच्छा है, वैसे रेसिस्ट भी नहीं होंगे ऐसे लोग, बस इतना बोल देंगे तुम लाइट हो हम डार्क हैं। द वोकैबुलरी ऑफ दीज लैंग्वेजेस इज़ नॉट डिक्टेटेड बाय द प्रिज्मेटिक स्पेक्ट्रम। तो इन लैंग्वेजेस में जो वोकैब है वो प्रिज्म के स्पेक्ट्रम से डिराइव नहीं है। हमने तो विग्योर में ही सीख लिए थे 7 रंग, फिर हमने गाने भी लिख दिए, मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने। बट इन लैंग्वेजेस में प्रिज्म का स्पेक्ट्रम काम नहीं करता। वंस अगेन, वॉट इज़ हैपनिंग इनसाइड द स्पीकर्स हेड्स। तो इन लोगों ने प्रिज्म को ना देखकर स्पीकर क्या सोचता है उसके हिसाब से वोकैब बनाई है। पीपल जनरली नेम ओनली द कलर्स दे कंसिडर सोशली और कल्चरली इंपॉर्टेंट। लोग सिर्फ उन कलर्स को नाम देते हैं जो उनके लिए सोशली इंपॉर्टेंट है या कल्चरली इंपॉर्टेंट है। तो या तो सोसाइटी में उस कलर का इंपॉर्टेंस होगा तो उसका नाम होगा, या फिर कल्चर में उस कलर का इंपॉर्टेंस होगा तो उसका नाम होगा। द एज़टेक्स हु वर एंथुसियास्टिक फार्मर्स यूज मोर देन अ डजन वर्ड्स फॉर ग्रीन। तो एज़टेक्स के लिए फार्मिंग सब कुछ है, तो वो लोग के पास ग्रीन के लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं। द मोर्सी कैटल हर्डर्स ऑफ एथियोपिया हैव 11 कलर टर्म्स फॉर काउज। उनके पास गाय को डिस्क्राइब करने के लिए 11 रंग है। मुझे नहीं पता उनकी गाय इतनी ब्यूटीफुल कैसे है कि 11 रंगों की गाय है। हमारी गौशाला पीछे रह गई है मुझे लग रहा है।
एंड नन फॉर एनीथिंग एल्स, और किसी कलर का जिक्र ही नहीं है। तो उनके पास 11 रंग है, 11 रंग गाय को डिफाइन करते हैं, 12वां रंग ही नहीं है दुनिया में, क्योंकि उनके लिए गाय ही सब कुछ है। कैटल हर्डर्स हैं वो लोग, तो उनको सिर्फ काऊ का डिस्क्रिप्शन ही समझ आता है, उनको सिर्फ काऊ की अपीयरेंस से मतलब है। दीज डिफरेंसेज माइट इवन इन्फ्लुएंस द कलर्स दे सी, और ये डिफरेंसेस हम क्या कलर्स देखते हैं उसको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं कि आपके कल्चर में जो इम्पोर्टेंट है आप उसको ज़्यादा देखेंगे। आप फार्मर हैं, आप ग्रीन के मल्टीपल शेड्स देखेंगे, आप कैटल हर्डर हैं, आप काऊ के अलग अलग शेड्स देखेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। Debates about linguistic relativity, the extent to which our words shape our thoughts and perceptions, have been rumbling on for decades, and while many scholars have overstated the case for it, some have found persuasive evidence that if you don't say have a word for blue, you would probably find it harder to distinguish. हमने अक्सर vocab में ये बात करी है कि अगर हमें शब्द ही नहीं पता होता तो हमको आइडिया भी नहीं आता, हमें शब्द पता होता है तो हम खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं। मुझे ओवरवेल्म वर्ड अगर आता है तो मैं बोल पाऊँगी और महसूस भी कर पाऊँगी कि मैं ओवरवेल्म फील कर रही हूँ। अगर मुझे पता ही नहीं है कि ओवरवेल्म कोई वर्ड होता है तो शायद मैं उसे कभी भी समझ नहीं पाऊँगी कि मैं क्या फील कर रही हूँ। आई विल ऑलवेज बी शॉर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन। इसी तरीके से अगर आपको किसी कलर का वर्ड नहीं पता तो आप उसे डिस्टिंग्विश भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा एविडेंस है कि अगर मान लीजिए आपके भाषा में ब्लू का कोई वर्ड नहीं है तो आप ब्लू को डिस्टिंग्विश भी नहीं कर पाओगे, आपका ध्यान ही नहीं जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वर्ड्स शेप करते हैं हमारे थॉट को और हमारे परसेप्शन को, और ये बहुत सारे डेकेड से चला आ रहा है। द मीनिंग्स ऑफ कलर आर नो लेस सोशली कंस्ट्रक्टेड, जो मीनिंग्स है कलर के वो भी सोशली कंस्ट्रक्टेड है, विच इज़ वाई अ सिंगल कलर कैन मीन कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट प्लेसेज एंड एट डिफरेंट टाइम्स। तो सबको पता है कि अलग अलग कलर्स का अलग अलग सिग्निफिकेंस होता है। तो कोई बोलेगा कि किसी ज़माने में ग्रे कलर बुढ़ापा होता था, आजकल लोग लेट 30s और 40s में भी ग्रे हेयर रखते हैं और उसको सॉल्ट एंड पेपर लुक का नाम दे दिया गया है। तो ग्रे कलर इज़ नो मोर अ साइन ऑफ old age, it is now a sign of wisdom and maturity. It's also kind of looks sexy on various people, so most people are not coloring their hair anymore. In various cultures blonde hair is nice, in various cultures blonde hair is not nice, it is artificial. In the West, white is the color of light, life and purity, but in Asia it is the color of death. We wear white to our death ceremonies and funerals. In America, red is conservative, blue is progressive. In Europe, it's the other way around. In Europe, red is progressive and blue is conservative. Many people today think of blue as masculine, pink as feminine. But 100 years ago, baby boys were dressed in pink and girls were dressed in blue. तो किस कलर का क्या मीनिंग है ये भी उसके कल्चर पे डिपेंड करता है। जब हम छोटे थे और हम ट्राई कलर का मीनिंग पढ़ते थे तो हम पढ़ते थे कि ऑरेंज इज फॉर सॉवरेनिटी, ग्रीन इज फॉर प्रॉस्पेरिटी, बट ग्रीन इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ कलर ऑफ जेलसी। कहते हैं ना, ही टर्न ग्रीन विद जेलसी। ब्लू इज कंसिडर्ड अ कलर ऑफ रॉयल्टी, बट ब्लू इज ऑल्सो द कलर ऑफ फीलिंग ब्लू एंड डाउन ट्रॉडन एंड डिफीटेड. So every color carries a meaning which is socially constructed depending on the culture of that place. When all of this is taken together, the subjective nature of visual perception, तो there is nature of visual perception, आपने visually कैसे perceive किया, complicating language of influence of language ने उसको कैसे complicate किया, social life का क्या role है, cultural tradition का क्या role है, ये सबका सब role play करता है in filtering our understanding of color. It becomes rather difficult to reach a conclusion different from that of the 18th century philosopher that in the end color is merely a phantasm of senses. हम डेविड ह्यूम से अग्री कर रहे हैं, ऑथर यहाँ पर अग्री करता है कि उसने कहा था कि सिर्फ सेंसेस का एक खेल है, एक फैंटेसी है कलर्स. तो वो बोलता है कि वाकई में ऐसा ही लगता है कि कलर्स हमारे इंद्रियों का, हमारे सेंसेस का एक खेल है, क्योंकि उसमें हमारा विजुअल परसेप्शन है जो कि सबका अलग है, लैंग्वेज का रोल है, हमारी सोशल लाइफ का इन्फ्लुएंस है, हमारी कल्चरल ट्रेडिशन का इन्फ्लुएंस है. तो इसीलिए कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कलर की अपनी खुद की क्या सतह है. The ancient Egyptian term for color is im, a word that also means skin, nature, character and being, and was represented in part by a hieroglyph of human hair. To the Egyptians, colors were like people, full of life, energy, power and personality. तो Egyptians के लिए colors लोगों जैसे थे. Colors में life थी, colors में energy थी, colors में power था, colors की personality थी. We now understand just how completely the two are entangled. तो अब हमको समझ आता है कि ये आपस में कितना जुड़ा हुआ है, क्योंकि कलर को पहले इम बोलते थे और इम का मतलब है स्किन या बीइंग.
That's because every hue, which means every shade, every color we see around us, is actually manufactured within us. हमारे अंदर कलर का जन्म होता है. In the same grey matter, उसी grey matter में brain के, that forms languages, stores memories, stokes emotions, shapes thoughts and gives rise to consciousness. तो ब्रेन का जो हिस्सा लैंग्वेज, मेमोरी, इमोशन, थॉट और कॉन्शियसनेस पे काम करता है, वही कलर को भी जन्म देता है. कलर इज a pigment of our imaginations. ठीक. I will not explain the last line because I have a question for you. I have 3 questions for you. We will solve them one by one and then we'll call it a day. And today in the RC genres class, we are going to finish whatever philosophy was left over from that day, 5 maybe 10 minutes. Then we'll discuss Silicon Valley Bank crisis and then we'll discuss the US debt ceiling crisis. If we are left with time, we'll start with psychology. Okay, so today's class is going to be interesting and very helpful. Do join me at 7:30. Question number 1 on your screen, please. कृष, ये पूरा आर्टिकल है, इसका कुछ पार्ट आता है आईपी मैट में या कैट में, पूरा पैसेज नहीं आता, लेकिन हम पूरा पैसेज पढ़ते हैं यूट्यूब पे. धन्यवाद निशांत. आई होप यू आर एबल टू डू दैट एज वेल. क्वेश्चन नंबर 1, योर आंसर्स प्लीज. Are you sure? B versus C versus E. ओके. लैंग्वेज बैरियर्स की वजह से हमें कुछ कुछ कलर्स नोटिस नहीं होते, तो उसने लिखा है ना कि एविडेंस है कि अगर ब्लू का आपको वर्ड नहीं पता तो आपका ब्लू पे डिस्टिंग्विशिंग करने का ध्यान नहीं जाएगा. कलर ब्लाइंडनेस की वजह से हमें कुछ कलर्स नहीं दिखते हैं, तो ऑफ कोर्स वो एक फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है कलर्स हमें दिखाने के लिए. कुछ चीज़ें हमें नहीं दिखती हैं ठीक से. वेरिंग वेवलेंथ्स ऑफ लाइट को लेके पीछे कहा गया है. उसने बोला कि ये थ्योरी ट्रू नहीं है, लेकिन वेवलेंथ्स एग्जिस्ट करती हैं. तो वेवलेंथ्स एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन वो हमारे अंदर जाके कलर बनती हैं. तो ऐसा नहीं है कि वेवलेंथ्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वेवलेंथ्स रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन वो थ्योरी गलत है कि हमें सिर्फ वो कलर दिखता है जो रिफ्लेक्ट होता है. हमारे अंदर जाके वो कलर बनता है. ये न्यूरोलॉजी फिजिक्स में समझाई हुई नहीं है, तो ये ठीक है. इट्स अ ट्रैप. न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस, डेफिनेटली यस. द आंसर इज नन ऑफ द अबव. न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस पीछे पूरा समझाया हुआ है कि कैसे कलर हम इंटरप्रेट करते हैं. ठीक है. आरसी कुछ करवाए या ना करवाए, ह्यूमन बॉडी को अप्रिशिएट करने का एक पर्सपेक्टिव तो दे ही देता है. क्या बोलते हो? नेक्स्ट क्वेश्चन. आंसर प्लीज. लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैसेज देख लो. Okay, what is the pun on, Komal? Why do you think it's a pun? Sanjana, why do you think it's a pun? What is the usual term with imagination? The usual term used with imagination is figment of our imagination. Dreams are nothing but figments of our imagination. Figment of imagination का मतलब है which is something which is fabricated, something which is artificial, something which exists only in imagination, something which is fictional. Okay, so apocryphal,
फिगमेंट ऑफ आवर इमेजिनेशन है. इसने इसको पिगमेंट कर दिया है क्योंकि पिगमेंट कलर की तरफ पॉइंट आउट करता है. सो देयरफॉर दिस इज अ वर्ड प्ले. वर्ड प्ले है, इसीलिए आंसर होगा पन. मैं बाकी के मीनिंग्स नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप आरसी जॉनर्स में जाकर फिगर्स ऑफ स्पीच की क्लास रिवाइज करें और इनके मीनिंग्स याद रखें. ठीक है. सो आंसर हियर विल बी पन. इट्स अ वर्ड प्ले विद द वर्ड फिगमेंट. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन. यू कैन गो टू माई प्रोफाइल मधुरिमा. यहाँ पे लिंक शेयर करूँगी भी तो क्लिकेबल नहीं होता है. तो मेरे प्रोफाइल पे जाओ, ऑन गोइंग कोर्सेज में जाओ, प्लस कोर्सेज में, वहाँ आरसी जॉनर्स मिलेगा. वॉच द एंटायर कोर्स. चूज एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज. कलर इज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर. देखने वालों की आंखों में रंग है, बाहर तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है. ये प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट में आईज मेक अ कलर परफेक्ट. वी आर नॉट लुकिंग एट परफेक्शन ऑफ कलर. Fortune favors the brave को fortune favors colors. No, colors are not related to fortune. Bright and colorful wins the race is a pun on slow and steady wins the race. Again, this does not justify the meaning. So this is the source of the article. The big idea why color is in the eye of the beholder from theguardian.com. You can use code Karishma Live to avail various discounts on an academy. If you find eclectic reading useful, please share it with your kith and kin. Press that like button and keep us going. Thank you for today. I shall see you at 7:30 with a lot of knowledge sharing in the RC Genres class. Till then, take care of yourself and try to enjoy all the colors around you. And I hope that when you look at them today onwards, you will look at them with awe and wonder.